पर्यावरण और सोशल कॉज से मैं पहले से ही जुड़ा हूँ। बचपन से या कॉलेज के टाइम से मैं एनएसएस सेक्रेटरी था, फिर रोटरैक्ट से बहुत सालों से जुड़ा था। पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम करते ही आ रहा हूँ। बीच क्लीनअप ड्राइव कर चुके हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर चुके हैं, और पिछले कुछ साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग फील्ड से लोगों को बुला रहे हैं, जैसे बीएमसी है या इंस्टीट्यूट्स है या सेलिब्रिटीज़ है, पॉलिटिशियंस है, ये सब इस इवेंट से जुड़ रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर इनपुट, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो एंड बहुत अच्छा लगता है कि इतने सब लोग जुड़ के एक मंच पे आके ऐसा कुछ अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं इस चीज़ पे। अवेयरनेस देखिए, जैसे बीएमसी कर रहा है, शायद लोगों को पता कोई चीज़ होती नहीं है, तो उस एक मंच पे ऐसे हो जाता है कि जहाँ पे बड़ी ऑडियंस है, जहाँ पे आप जैसे मीडिया हमें सपोर्ट करती है, तो इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और लोगों तक बात हम लोग पहुँचा के दिखते हैं। आगे कुछ प्लान्स चालू है, तो डेफिनेटली आपको जैसे होते जाएंगे हम विल हैव अ गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। ये फाउंडेशन से मैं पहली बात तो धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और ये तत्पर रहे हैं, ऐसा मुझे इन्फॉर्म किया गया है इस क्षेत्र में, और ये इको फ्रेंडली चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इनके साथ बीएमसी जुड़ी हुई है, उसकी बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। सो आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेशियस इवेंट। ये लोग एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिस पर आम लोगों की नज़र नहीं जाती है, और बस यूज़ करना आता है लेकिन प्रोटेक्ट करना नहीं आता है लोगों को। तो खैर ये सिखा रहे हैं कि अगर आप प्रकृति को यूज़ करते हो, एंजॉय करते हो, तो प्रकृति को कैसे आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, एंड दैट्स अ ग्रेट जॉब। तो जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। First of all, I would like to, I'm extremely thankful that they have called me, Rishikesh has called me for such an event, which is a very important event, and especially in the having this event in the colleges, where the younger generation, we want the younger generation to be aware of the problem. See, we had celebrated the Earth Day, and actually I would like to say that the Earth Day is every day. Every day is supposed to be an Earth Day. We have to give it to the younger generation. We have to tell them to be aware that Mother Earth is suffering now. Mother Earth has given us a lot of, so many years Mother Earth has been with us. But now it is time that we have to take care of Mother Earth. Because Mother Earth is like, the condition is being worsened by a lot of things like pollution. Then there is different types of pollution. And in like urban places like Bombay, we know that water pollution, the air pollution, it is really maximum. So we have to really make people aware, and I am very happy that youngsters like in this college, the students of this college and all the youngsters, they are very well aware, and I am so happy to see that they come out with different ways of making people aware, maybe in the form of music, maybe in the form of conferences, maybe in the forms of some group awareness. So we all have to remember that somehow we have to save our Mother Earth. We have to look after everything, and for that we have to take care of, like say, plastic. We have to stop the use of plastic. We have to use reusable things. We don't have to, planting a tree. That's even every person may say that what can I do? It's such a big problem. But no, everybody has to give in. Everybody has to do something. Even planting one tree is so helpful. We were also involved in this Save RA. See, green things, that these
these are the lungs, the forest and all, these are the lungs of our Mother Earth, and we have to save it. So we have to take all the precautions and try to save that. So that's what I will say in short, and I hope everybody becomes aware and takes important steps in everything, and save the Mother Earth. That's all. Thank you. बहुत अच्छी एक कोशिश है, और जितना हम अर्थ के प्रति या एनवायरनमेंट के प्रति खुद जागरूक रहेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट हमको इतना कुछ देती है, तो उसको अगर हम कुछ अपनी तरह से दे पाएँ, इतना पेड़ पौधे काट रहे हैं, मिट्टी इधर बहा रहे हैं उधर बहा रहे हैं, तो उनको ना करके हम अगर इसको थोड़ा रेस्टोर करें या रीग्रो करें, सो वो हमारे लिए, हम सारे मानव जाति के लिए बहुत अच्छी एक अगली पीढ़ी के लिए दैट विल मेक एन एनवायरनमेंट विच इज़ गुड फॉर देम, गुड फॉर देयर हेल्थ. सो इट्स फॉर अस. तो ये हम खुद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहने चाहिए, क्योंकि अर्थ है, ज़मीन को हमें बचाना भी है. अभी उसमें बहुत तरह से खेती किसानी के लिए हम बहुत ज़्यादा केमिकल से ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे हमारी ज़मीनें बहुत ख़राब भी हो रही हैं. हम अपना छोटे मोटे लाभ के लिए अगर हम उसको केमिकल मुक्त कर दें, अपनी फसलों को, अपने जो भी फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ऋषिकेश चूरी ने जो ये कदम उठाया है, या हामी जो संस्था है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, वेरी अप्रिशिएटेड. मतलब हम लोग सब ये चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को किस तरह से हम और हरा भरा करें, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, क्योंकि ज़मीन सबकी ज़रूरत है. जो आसमानों में उड़ रहे हैं, मैंने बचपन में एक शेर सुना था कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है. तो ज़मीन के मसाइल पर बात हो रही है आज. ये बहुत खुशी का टाइम है, और हम सब बहुत खुश हैं और बहुत अप्रिशिएबल है. हिंदी में बात करें, हिंदी इंग्लिश. हाय, आई एम लीना मोगरे. आई एम अ सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट. और ऋषिकेश चूरी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हामी के थ्रू अबाउट स्प्रेडिंग द मैसेज फॉर ग्रीनर अर्थ. और मुझे बहुत खुशी है इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये अपनी तरफ से कोशिश है उनकी भी हमारी भी कि टू स्प्रेड द गुड वर्ड ऑफ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, बिकॉज द पोल्यूशन इज़ हार्मिंग ऑल ऑफ अस. बीइंग इन फिटनेस, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपकी कैपेसिटी जो है, लंग कैपेसिटी, आपके जो साइनसेस है, वो अफेक्ट हो रहे हैं. इसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल भी लो होता जाता है. And there are so many other diseases that can come up because of environment pollution. So please take care of your environment. Don't blame everybody. आप क्या कर सकते हो environment के लिए वो सोचो. And plant trees, a lot of trees. Take care of birds. Take care, give them water in the summer. ये छोटी छोटी चीज़ें हर एक जन करे तो बहुत अच्छा रहेगा अपने environment के लिए. Thank you. ऋषिकेश जी के बारे में हामी अर्थ की तरफ से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ. थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी, एंड थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर कॉलिंग मी हेयर. और वर्ल्ड अर्थ डे वैसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन आज
हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुटे हैं, एक साथ जुड़े हैं। एंड सबसे पहले मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट हुआ करता था पहले। सो थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। एंड एज एन इंडियन, राइट, एक अर्थ को बोलते हैं हिंदी में पृथ्वी, तो हमारी जो पृथ्वी है उसे हमें बचाना है, लेकिन एक इंसान उसे बचा नहीं सकता है, हम सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका मकसद है हमारे अंदर एक जो छुपी हुई बहुत सारी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं अक्सर, उन्हें रिवाइव करना, हमें याद दिलाना कि हम लोगों का कुछ फ़र्ज़ है, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये दिन हमें याद दिलाता है। और छोटी छोटी शुरुआत हम अपने एंड से कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हम ना करें, हम एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें, तो इसके बारे में हम जागरूक रहें हमेशा, और ऐसे कार्यक्रमों से हम सबको जुड़ना ही चाहिए। तो आज मैं भी थोड़ी जागृत हो जाऊंगी यहाँ से, जो अनुभव लेकर जाऊंगी उसके बाद। एंड थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी, थैंक यू सो मच राहुल फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अभी लोग जुट रहे हैं और हम आज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे। हमारी पृथ्वी का ये फेस्टिवल है और हर दिन अर्थ का है, क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हैं सब, और पृथ्वी है तो हम हैं, तो हमें इसे कैसे बचाना है, कैसे हमें एकजुट होकर एक साथ आना है। तो ये आज जो सीख है ये मैं सीख कर जाऊँगी, और हम कोशिश करेंगे ये बात आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का, जो इतना खूबसूरत मच नीडेड इनिशिएटिव इन्होंने प्लान किया है। मच नीडेड इनिशिएटिव फॉर द आवर। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो अलग अलग हमारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे अगर हमने आज अपनी आंखें नहीं खोली। और हमारे बीएमसी के अध्यक्ष और ब्रह्म कुमारी से दीदी जो हैं, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल मैसेजेस शेयर किए। एंड इट्स अबाउट मैं अपने कैपेसिटी में क्या कर सकता हूँ। भले एक छोटी सी चीज़ है, अगर मेरे हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है और मैं उसको एक डस्टबिन में फेंकता हूँ और ना कि रास्ते पे फेंकता हूँ, देन आई हैव डन माई जॉब। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक द अवेयरनेस कम्स, दैट इज़ हाउ द इंटायर समाज, the community can change by doing one small thing at a time। बड़े चीज़ों को देख के ओवरवेम नहीं होना है, छोटी चीज़ें करनी है पर करनी है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, आदाब। और इस सुंदर से कार्यक्रम में मुझे न्योता मिला ऋषिकेश चूरी से, जो इस NGO हामी को चलाते हैं। उन्होंने जिक्र किया ही इज़ कंडक्टिंग एन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द एनवायरनमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मैं एक अदना सा फनकार हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, और कुछ मैंने फिल्मों में गीत भी गाए हैं। लेकिन ऐसा इनिशिएटिव ये मेरे हिस्से में पहली बार आया, और मैं वही सोच रहा हूँ कि अपनी तरफ से मैं थ्रू आर्ट एंड म्यूज़िक, अगर कोई गीत गाना हो या कंपोज करना हो या लोगों तक बात पहुँचानी हो, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, नमस्ते। मैं इस हामी इवेंट के बारे में और स्पेशली ऋषिकेश चूरी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। और मुझे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये प्रोग्राम किस बारे में होने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो हम सभी एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं, एंड इट इज़ रियली अफेक्टिंग द सोसाइटी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बेसिस। बिल्डिंग का कचरा हो, सोसाइटी का कचरा हो, इफ़ वी ऑल शुड बी टुगेदर टू टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ, these things will be slowly eradicate. I'm quite sure about it. Thank you.
बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम का मेन कारण हमारा मन होता है। तो अगर हम विल पावर बढ़ाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो ऑटोमेटिक माइंड के ऊपर कंट्रोल आता है, उसकी इफेक्ट बॉडी पर। अगर मन ठीक है तो बीमारियां दूर करना बहुत सहज है। दवा और दुआ दोनों चाहिए, दवा भी ज़रूरी है, साथ साथ दुआ भी ज़रूरी है। तो मेडिटेशन से विल पावर बढ़ता है, तो कोई भी कॉज है, प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम कंट्रोल प्राप्त करते हैं। ओम शांति। जैसे कहा जाता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब कोई किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं तो फिर वो बढ़ते 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 कैंसर में मतलब बढ़ जाता है, कैंसर होता है। तो हम लोग ये बताते हैं कि कैसे हम किसी को फॉरगिव करेंगे, कैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने माइंड को पीसफुल रखते हैं और हम अपने आप को समझ पाते हैं हम कौन है और हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, देन हम सामने वाले को भी एक रियल आइडेंटिटी समझ के, एक सोल समझ के हम उसको फॉरगिव कर सकते हैं। तो जब भी हम रियल को समझते हैं, क्यों कोई भी सिचुएशंस आते हैं, जब हम समझते हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। और जैसे नेचर का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऋषिकेश चूरी भाई का, और ऐसे विचार आना बहुत कम लोगों को ऐसे विचार आते हैं, बट ऐसे विचार आके 1 से 2, 2 से 3, जैसे हम एक कैंडल जलाने से हम बहुत सारे कैंडल्स को जला सकते हैं। तो एक जन के ट्रांसफॉर्मेशन से हम बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को अर्थ डे पे मैसेज दे सकते हैं कि मदर नेचर का काम है, हमारे विचारों से मदर नेचर को शक्ति मिलती है, हमारे संस्कारों से। तो हमारा काम है कि पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करना, जो हमारे मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को ठीक रखता है। अभी भी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अभी विजिट किया था, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह उन सब आए हुए थे। अभी भी एजुकेशन का प्रोग्राम चालू है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं। अभी भी इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम अभी भी माउंट आबू में चालू है। सबसे पहले तो नमस्कार, और मेरा नाम राहुल सेठ है एंड आई एम म्यूज़िक कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर एंड मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऋषिकेश चूरी जी का, जिन्होंने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ आज बुलाया इस अर्थ डे के सेलिब्रेशन पर। और हामी का जो ये इनिशिएटिव है मदर अर्थ को लेकर, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ to be really appreciated, because आज जो जिस तरह का पर्यावरण का जो हाल है, जो हमारे देश में ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से लॉस ऑफ नेचर हो रहा है, उससे कई ज़्यादा हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है। और हामी जैसे जो एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली इनिशिएटेड बाय ऋषिकेश चूरी और उनकी मदर श्रीमती मृदुला चूरी, जो कि खुद भी बहुत एक्टिव हैं, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट ऑल्सो। तो इन लोगों की वजह से आज, ऐसे इनिशिएटिव्स की वजह से आज हम लोगों को भी मौका मिलता है इनके साथ जुड़ने का और एक इस बारे में लोगों तक ये बात फैलाने का, पहुंचाने का कि कितना ज़रूरी है एनवायरनमेंट और पर्यावरण को की तरफ लोगों का ध्यान देना और उसको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक भरसक प्रयास करना। राइट, थैंक यू। हामी अर्थ जो है बेसिकली इन द फील्ड ऑफ कैंसर पेशेंट, ही इज़ वर्किंग फॉर देयर वेल बीइंग, रिहेबिलिटेशन, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, because we have to create awareness and bring more confidence among these patients, and especially the हामी Earth. If we create more tree, we plant more trees, it cleans the environment, and which is very very important for the clean air, clean this, so the healthy people, healthy mind, and I believe हामी Earth is doing very good job in this field. That is what I would like to say.
देखिए, कॉलेज आज की डेट पे कॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम जो यूथ के अंदर हम अभी से इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा फ्यूचर के लिए। और जो और लोग जैसे सेलिब्रिटीज़, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन उसको अगर आगे ले जाना है, लीगेसी को आगे बढ़ाना है, तो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ज़रूरी होती है। बघा, एक तर मला पर्सनली असं वाटतं की ऋषिकेश चुरींनी खूप चांगला हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केला आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी कॅन्सर आणि पर्यावरण हे एकत्र जोडलं आहे आज अर्थ डेच्या दिवशी. कॅन्सर किंवा कुठलाही रोग पर्यावरणाबरोबर जुडलेलाच असतो असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने असं असतं की कॅन्सर जे आहे ते मोस्टली होतं आपल्या बॉडीमध्ये जे कार्सिनोजेन्सनी, आणि आपल्या बॉडीमध्ये जे कार्सिनोजेन्स जे असतात ते सगळे आजूबाजूलाच पसरलेले आहेत. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगू की प्लास्टिकमध्ये कार्सिनोजेन्स असतात, तर प्लास्टिकचा वापर तुम्ही कमी केला तर कार्सिनोजेन्स आपोआप आपल्यामध्ये कमी होणार आहे. तर हा प्रयत्न ऋषिकेश चुरींनी केला आहे, त्यासाठी मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो आणि खूप खूप मी त्यांना शुभेच्छा देतो पुढच्या त्यांच्या अशाच प्रोग्रामसाठी. बस एवढंच. चला. हामी ने जो जागरूकता का एक अभियान चलाया है कैंसर पेशेंट के लिए, तो ये युवाओं को जागरूक करेगा और इतने शानदार लोगों को इस इवेंट में बुलाया है, तो युवाओं में एक जागरूकता आएगी और कैंसर पेशेंट और अन्य सेवा कार्यों के लिए जो इनने अभियान चलाया है उसमें मेरी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि ये युवाओं को जागरूक करेंगे और हामी निरंतर अपने अभियान में आगे बढ़ता रहेगा. Hi, this is a very good initiative by HAMI, and cancer awareness, usually people take it very lightly, and they don't keep on checking their day-to-day health and checkups because of the food contamination and the environment में जितना pollution और ये सब जो हो रहा है उसके चक्कर उसमें जो हमारा बॉडी पे जो उसका असर हो रहा है वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं. So awareness drive like HAMI is very very crucial and very important कि हमको इस बारे में अवेयरनेस आए और हमको इस बारे में और नॉलेज और इसका कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे आसपास हमको मिलता रहे. That Rishikesh is a very very dear person, and he's always been organizing these events for a long time, right from blood donation camps to eye camps to everything. So now to see him do this for Earth Day is a great opportunity for us to be witnessing it. And best of luck to him and best of luck to HAMI Foundation for I hope we see more of these events. And the most important thing is that we need to save the earth. So on Earth Day to do something like this, raising awareness is the most important. Thank you. हामी ऋषिकेश चूरी हमारे अजीज़ भाई, इनकी तरफ से इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है. बहुत अच्छा काम जो आज बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, और हम इनके साथ हैं बिल्कुल. और ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए जो ज़रूरतमंदों के काम आए. और आज ये इन दिनों जो हाल ही में जो पहलगाम में जो हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए यही कहूँगा कि इस दौर में ये हादसा कैसा गुज़र गया, इंसिडेंट हादसा,
इस दौर में ये हादसा कैसा गुज़र गया, इंसान तो रहा मगर एहसास मर गया। बहुत अफसोस हुआ और दुआ यही है कि सब, मैं तो यही कहूँगा कि छाई रहे हर चेहरे पे मुस्कान, यही चाहता है हिंदुस्तान का हर एक इंसान। बस सब जगह अमन, खुशी और सुकून, चैन रहे। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हामी ऑर्गेनाइजेशन को कि इसी तरह की ये प्रोग्राम्स करते रहें और अच्छे काम के लिए अपने साथ रखें।